Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. And today we are going to start the fourth chapter of our Honeysuckle book, class 6. And what are we talking about? Today we are going to talk about one of our national heroes, I should say heroine. A national heroine who was an astronaut, an engineer, and later the first woman to enter into the space and of Indian origin. Who was she? She was Kalpana Chawla, and I'm sure you must have heard her name a lot many times, because whenever we talk about inspiration, motivation, dedication, so this name is always there, because she was a picture of dedication. She was a synonym of persistence and motivation. आज भी जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी stories पढ़ते हैं, and how it ended like the disaster that happened in February, we get goosebumps. Because वो story पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं ये लगता है यार, I wish I could do something. I wish or I want to do something. और वो जो motivation आता है ना, I think that is the motivation we need while we are in our student years, so that we can achieve something big in our coming life. So उसी motivation के साथ start करते हैं हमारा ये chapter, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Now this is the picture of Kalpana Chawla with a smiling face. Let's start. Before you read, a space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, unlike a rocket, for example, between Earth and a space station. So before we understand and start reading this chapter, there are certain nomenclatures, कुछ ऐसे words हैं जिनके बारे में आपको अच्छा खासा knowledge होना चाहिए, ताकि आप इस chapter को अच्छे से रीड कर पाओ, प्रॉपरली समझ पाओ. सो स्पेस शटल क्या होता है? स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं होता कि एक बार गया और उसके बाद फिर वो वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आ सकता. तो ऐसा एक स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसमें आप बार बार ट्रैवल कर सकते हो. नाउ दैट इज योर फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो. यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो. फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. नेचुरलाइज्ड का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब क्या है, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस का मतलब क्या है. सो ये सारे वर्ड्स जो हैं बेसिकली आपसे इसीलिए कहा गया है बिकॉज ये चैप्टर में आपके आएंगे. अबोर्ड, लिफ्ट ऑफ एंड क्रू. सो हम ये सारे वर्ड्स का मतलब अपने चैप्टर में देखेंगे. ओके, अब है नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन. एयरप्लेन, प्रोग्राम. This is how these words are spelled in American English. How are they spelled in British English? तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जितने भी वर्ड्स स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में दिए हैं कि इनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढिए, वो सारे मीनिंग्स वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू एज वी कम अक्रॉस दोज वर्ड्स while reading the chapter. Similarly, there is a difference between British English and American English. Spellings different होती हैं, pronunciation different होता है, तो वो बात भी हम देखेंगे. क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो तो अगर लिखा होता है कलर, COLOUR, दिस इज आवर स्पेलिंग. हम इसी तरीके से कलर की स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन वहां पे वो उसमें एक रेड लाइन दिखा देता है एंड वो स्पेलिंग जो शो करता है वो होता है COLOR. राइट. सो दोनों वर्ड सेम हैं, दोनों स्पेलिंग्स राइट हैं, तो क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस हम समझने वाले हैं when we are going to understand the difference between American English and British English. But before we do all those things, we need to read this chapter because it's an amazing, inspiring, motivational story. So this chapter starts with a news report. Tragedy in space. US space shuttle Columbia breaks into flames. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others here. Now this chapter starts with a news report, a report of that black day when Columbia जो space shuttle था जिसमें कल्पना चावला और उनके साथ 6 और लोग जो थे, astronauts जो थे, वो travel कर रहे थे, उन लोगों का जो spacecraft था वो crash हो गया. It was bursted into flames.
ओके, सो ट्रेजेडी इन स्पेस यूएस शटल कोलंबिया, कोलंबिया क्या है, उसका नाम है, उस स्पेस शटल का नाम है ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। मतलब जब क्या हुआ, आपका स्पेस जो होता है, स्पेस में जो पूरी एनर्जी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, और आपके अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत डिफरेंस होता है, जो उसके साथ पूरी जो एनर्जी अराउंड होती है। तो जब वो स्पेस से अर्थ में एंटर कर रहा था तो इट वॉज नॉट एबल टू बेयर इट एंड इट बर्स्टेड इनटू फ्लेम्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, नेवर डन और नोन बिफोर, मतलब ऐसी ट्रेजेडी कभी हुई नहीं थी, इसलिए इसका मतलब है अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। स्पेस ट्रेजेडी, ये जो स्पेस ट्रेजेडी हुई है यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की, इसमें कितने लोग थे, इट हैड कैरिंग, मतलब उसमें कौन कौन लोग थे, इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st of February 2003, killing all 7 on board. Broke apart का मतलब क्या है, break violently, बहुत बुरी तरीके से वो एकदम से फट गया पूरा का पूरा, at streaked over Texas. Streaked मतलब जब वो टेक्सास के ऊपर फुल स्पीड से लैंड कर रहा था। ओके, जो टेक्सास इज अ प्लेस, तो वहां पे जब वो स्पेस में ऊपर से उस मतलब लैंड करने के लिए, अर्थ में एंटर करने के लिए ट्राई कर रहा था, तब उसकी लैंडिंग के टाइम पे, लैंडिंग स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, लैंडिंग स्ट्रिप का मतलब होता है कोई एयर स्ट्रिप जहां पे आप लैंड कर रहे हो। ऑन 1st of February सारे लोग उसमें जितने भी लोग थे, दे वर ऑल डेड। ओके, The shuttle lost contact with NASA at about 9 AM. So morning 9 o'clock जो शटल था, स्पेस शटल था, उसका नासा के साथ पूरा कांटेक्ट खत्म हो गया। As it came in for landing, जैसे वो लैंडिंग के लिए आ रहा था, उसका नासा के साथ पूरा जो कांटेक्ट था वो खत्म हो गया। It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 kilometer. मतलब इसका ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक एलिवेशन, इस तरीके से जो होता है ना, एक एलिवेशन होता है ऑल्टीट्यूड, एंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अबव द होराइजन। सो जैसे अगर आपका मान लो ये होराइजन है तो इसमें क्या ऑल्टीट्यूड है, सो ये एक 20,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में था, एंड ट्रैवलिंग किस स्पीड से, 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, और उस टाइम पे जब वो एंटर कर रहा था तो पूरा जो ग्राउंड कंट्रोल होता है उनका जो था कनेक्शन जो था शटल के साथ वो पूरा खत्म हो गया। कोलंबिया had lifted off on 16 January 2013 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. अभी वो हमें क्या बता रहा है, कोलंबिया ने टेक ऑफ कब किया था। So we got to know that Colombia got, like, it was all blasted on 1st of February, right? And here it started on 16th January 2003. It took off. यहाँ पे जो lift off है, lift off का मतलब क्या होता है, it started or it took off on 16th January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. कहाँ से start हुआ था, फ्लोरिडा में जो space center है वहाँ से start हुआ था। It had stayed in orbit for 16 days. और 16 डेज तक वो ऑर्बिट में ही था और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था। उन 16 डेज में जो 7 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से एक कल्पना चावला भी थी, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने टोटल 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे स्पेस में बिफोर दे स्टार्टेड बैक फॉर भोपाल अर्थ, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन उन 80 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब वो वापस आए तो वो कभी पहुंच नहीं पाए। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। ओके, सिंस इट्स अ स्पेस शटल, तो ये कौन सी स्पेस फ्लाइट थी, 28th
स्पेस फ्लाइट थी एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. सो ऐसा कुछ नहीं था कि शटल में कोई इश्यूज थे, क्योंकि शटल 100 फ्लाइट्स के लिए बिल्कुल प्रॉपरली मेड था, लेकिन 28th फ्लाइट वो अपनी पूरी नहीं कर पाया. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. Now we are about to, this was a news report, now we are about to start with our story about Kalpana Chawla. So Kalpana Chawla Indian origin था उनका, मतलब वो हरियाणा के एक शहर करनाल से थी. She had never dreamed that she would cross the frontiers of space. उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो स्पेस में ट्रैवल करेंगी, वो कभी भी एक एस्ट्रोनॉट बनेंगी. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. So जो आज भी हमारे इधर पे बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, they think that it is not important to give a girl the proper education that she deserves. आज भी हमारे इधर पे बहुत सारी जगह है जहाँ गर्ल्स को वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल विलेज. सो कल्पना चावला हैड नेवर ड्रीम्ड कि उनको जो है स्पेस में एस्ट्रोनॉट बनने का मौका मिलेगा, स्पेस में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा. उनके लिए ये बहुत था कि उनके पेरेंट्स ने उनको बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया था, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. तो उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया था आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. सो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, मतलब ग्रेजुएटेड मतलब जब उनका 12th तक टैगोर स्कूल से हो गया, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करी, और उसके लिए भी शी वॉज वेरी थैंकफुल टू हर पेरेंट्स. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, मतलब उन्होंने क्या किया था पढ़ाई में she had a Bachelor of Science degree, किसमें, Aeronautical Engineering में उन्होंने BSc किया था, और that too her father was totally against her. Her father never wanted her to do this. उनके हिसाब से ज़रूरी नहीं था वो चीज़. She went for a master's degree to the United States of America. So ना सिर्फ वहाँ पे she stopped. Once she was done, she completed her aeronautical engineering. She went to US. Why? To complete her master's degree के लिए. She later earned her PhD in aerospace engineering. एंड वहाँ उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था. जैसे ही उन्होंने मास्टर्स कर लिया, तब शी हैड द अर्ज कि नहीं, अब मुझे इसमें पीएचडी करनी है, किसमें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. जब वो छोटी थी कल्पना चावला, तब ना वो अपने फादर के साथ जो ये फ्लाइट स्टेशंस होते थे वहाँ जाती थी और वहाँ पे देखती थी कि प्लेन कैसे उड़ रहे हैं. एंड दैट वाज द टाइम शी गॉट सो इंस्पायर्ड दैट शी डिसाइडेड वन डे इफ पॉसिबल आई वुड वांट टू फ्लाई अ प्लेन. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral. So Kalpana Chawla was the first Indian American woman, ये पहली Indian American woman थी astronaut to blast off. Blast off मतलब take off from a launching site, to take off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. So she was the first astronaut, first Indian origin woman जिन्होंने यहाँ पे एक सक्सेसफुल मिशन, स्पेस के एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. So first time जब Columbia lift off किया था, तब उनके पूरे घर वाले, पूरा करनाल, because she belonged to Karnal, so they were so proud of her. And everybody cheered for her. They were so happy for her as it took off, as it lift off. Lift off का मतलब क्या होता है? A launch pad is an above ground facility from which a rocket powered. So no, this is a launch pad वाला thing. So lift off का मतलब क्या होता है? To take off. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor John Pierre Harrison. अब कल्पना जो थी वो एक्चुअली इंडिया से थी, लेकिन लेटर शी वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन. नेचुरलाइज का मतलब क्या होता है? एडमिट टू द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री. मतलब जब वो वहाँ पे गई, उन्होंने वहाँ की पढ़ाई करी, उन्होंने वहाँ से पीएचडी करी, सो शी गॉट द ग्रीन कार्ड ऑफ दैट कंट्री एंड शी बिकेम अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. So originally by birth she was a citizen of India, but then she also got a citizenship of
US. And she married the flight instructor John Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. So वो एस्ट्रोनॉट तो थी, बट देन शी वॉज मल्टी टैलेंटेड. शी हैड द लाइसेंस. क्या क्या फ्लाई करने का लाइसेंस था? सिंगल और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स. सिंगल इंजन एयरप्लेन्स भी फ्लाई कर सकती थी, मल्टी इंजन एयरप्लेन्स भी फ्लाई कर सकती थी, सिंगल इंजन सी प्लेन्स भी फ्लाई कर सकती थी एंड ग्लाइडर्स भी फ्लाई कर सकती थी. एंड शी वॉज डेफिनेटली समवन वी शुड बी प्राउड ऑफ. She was also a certified flight instructor. वो एक flight instructor भी थी. After qualifying as a pilot, कल्पना began to consider another challenge. अब वो pilot बन गई, बहुत अमेजिंग फ्लाई करने लग गई, अलग अलग तरीके के प्लेन्स फ्लाई करने लग गई. अब उनको लगा यार अब क्या, व्हाट नेक्स्ट. तब उन्होंने एक और चैलेंज एक्सेप्ट किया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. तब उन्होंने नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम जो है उसके लिए अप्लाई किया. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. इनिशियली उनको कैसे क्या जॉब ऑफर हुआ, उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट बनाया गया नासा में. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. And 1994 में उनको नासा ने select किया to be trained as an astronaut. Astronaut क्या होता है? Astronaut means a person who is trained to travel in spacecraft. एस्ट्रोनॉट क्योंकि आपको अगर आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो तो इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. ऐसा नहीं है रॉकेट में बैठे और निकल लिए. इट इज़ वेरी टफ. आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए, बहुत स्टैमिना चाहिए. ऑफकोर्स सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत अलग हो जाता है, तो योर बॉडी शुड बी एबल टू विथस्टैंड एवरीथिंग. आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ता है एंड ऑल दोज थिंग्स. सो she was selected after a very terrific training. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. अब यूजुअली आदमी लोग जो होते हैं, लाइक जो मेल्स होते हैं, उनसे कभी ये क्वेश्चन नहीं किया जाता कि आप एक मेल हैं और आपको चूज़ कर लिया गया है, आपको कैसा लग रहा है. लेकिन एक वुमेन से हमेशा पूछा जाता है, एक वुमेन से हमेशा पूछा जाता है कि आप पहली वुमन हो और आपने ये कर दिखाया, आपको कैसा फील हो रहा है. तब कल्पना चावला का जवाब क्या था? आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. She said कि मैं जब अपनी पढ़ाई कर रही थी, जब मैं इस चीज़ के लिए अपेयर कर रही थी या मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी, मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं वुमेन हूँ या मैं एक बहुत छोटी सी कंट्री से, मतलब छोटे से गाँव से हूँ या मैं एक अलग कंट्री से हूँ. मैंने ये सब कभी ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मेरे भी सपने थे जैसे बाकी लोगों के होते हैं और मैंने अपने सपनों को फॉलो किया. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, और जितने लोग मेरे आसपास थे उन्होंने हमेशा मुझको सपोर्ट किया, मुझे एनकरेज करा और क्या कहा, If that's what you want to do, carry on. तुम्हें ये करना है, करो. और ये बहुत मुश्किल होता है. आप कभी भी आगे जब बढ़ते हो तब आपके आसपास वाले होते हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, ये इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी सक्सेस पे. क्योंकि क्या होता है, अगर आपको कोई बोले नहीं तुम तो नहीं कर पाओगी, अरे ज़रूरत क्या है करने की, अरे दिमाग ख़राब हो गया, ये करने की क्या ज़रूरत है, तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरे टाइम आप उन्हें पुल कर रहे हो नीचे की तरफ. बट जब आप कहते हो कि तुम्हारा मन है तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सो दैट इज़ लाइक दैट रॉकेट के जो नीचे आप एक एनर्जी प्रोवाइड करते हो कि वो एकदम फिर आसमान छू जाए. So that was it. So that is how she said that I got my family's encouragement, I got the support and that's how I started doing it. I never realized कि मैं लड़की हूँ या मैं कोई दूसरी कंट्री से हूँ. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. अब इनका जो first space mission था जो कोलंबिया में था वो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स का था. मतलब 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स के लिए वो स्पेस में थी. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. सो ये जैसे अगर अर्थ है तो इसके ऑर्बिट में 252 चक्कर लगाए उन्होंने अर्थ के. ट्रैवलिंग
10.45 million kilometers. Oh my god, 10.45 million kilometers travel किया उन्होंने 15 days 16 hours और 34 minutes में. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. अब वो जो पूरे जो 7 लोग थे उसमें से एक तो इंडियन ओरिजिन के थे, एक यूक्रेनियन थे और एक जापानीज भी थे. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips. अब वो जो स्पेस में गए थे तो टहलने तो गए नहीं थे कि चलो वेकेशन मना के आते हैं. They went there to study space. They went there to conduct a lot of experiments to understand कि स्पेस में अगर वो पॉलिनेशन करते हैं मतलब क्या पेड़ उग पाएंगे. पॉलिनेशन क्या होता है, जब आप पोलन ग्रेन्स जो होते हैं किसी भी प्लांट में, उसके जो फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो आप उनको वापस ग्रो करने के लिए यूज़ करते हो तो क्या उससे नए प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं. क्या स्पेस में आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो. सो दे ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग पॉलिनेटिंग प्लांट्स कि उनको देखना था कि क्या स्पेस में फूड ग्रोथ हो सकती है. सेकेंड, दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि क्या आप जो स्ट्रॉन्गर मेटल्स हैं वो स्पेस में बना सकते हो, कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो स्पेस में ज़्यादा फास्ट बना सकते हो या नहीं कर सकते हो. ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million. $56 million खर्च करे थे उन्होंने ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में. On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, I'm talking about 1st of February. So जब 1st of February को जब फाइनली उनको वापस आना था तो everything was getting covered live on national television. It was a big thing, right? लेकिन जब ये डिज़ास्टर की न्यूज़ बाहर आई, there was shock and disbelief. There was shock everywhere. Everyone was shocked and there was a disbelief. Disbelief means when you are not able to believe कि ऐसा हुआ है कुछ. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. उनका जो पूरा जो करनाल जो पूरी सिटी थी वो रात भर सो नहीं पाई. वो रात भर वो लोग सिर्फ एक चीज़ प्रे कर रहे थे कि किसी तरीके से ये न्यूज़ आ जाए कि ठीक है स्पेस शटल जो है वो ब्लास्ट हो गया एंड ऑल, लेकिन क्रू जो थे वो लोग मे बी पैराशूट्स की हेल्प से या किसी भी तरीके से वो बच गए, वो निकल गए एंड दे वर ऑल प्रेइंग कि यार बस ये लोग वापस आ जाएं. बट अलास, शी वॉज अ हीरोइन. It takes enormous ability to become an astronaut. She was definitely a heroine क्योंकि astronaut बनना is not a piece of cake. It is enormous difficult मतलब enormously difficult मतलब बहुत ही ज़्यादा difficult होता है. You need to know a lot about everything. आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, right from biology to astrophysics to aeronautical engineering. आपको बायो का भी पूरा information होना चाहिए. Astrophysics क्या होता है? Astrophysics is a branch of space science that applies the laws of physics and chemistry to explain the birth, life and death of stars, planets, galaxies, nebulae and other objects in the universe. मतलब जो स्पेस की जो पूरी साइंस होती है कि कोई जो स्टार है, कोई प्लैनेट है, गैलेक्सीज हैं, ये कैसे बर्थ होता है इनका, कैसे ये डेड होती हैं, सारी पूरा इसको बोलते हैं हम एस्ट्रोफिजिक्स. सो इफ यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट यू नीड टू हैव डीप नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. और आज की डेट में जो हम एकदम super specialized लाइफ जी रहे हैं, सुपर टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, उसमें इफ़ यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़ लिया, 2 बुक पढ़ लिया. यू शुड बी अ चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया. हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग. ऑ इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? कॉजिंग और वर्दी ऑफ एडमायरेशन और रिस्पेक्ट. मतलब आपको जब आप उनकी स्टोरी पढ़ते हो, कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हो, आपके अंदर से बहुत सारी रिस्पेक्ट आती है. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो
एक बेसिक एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो बेसिक एजुकेशन देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने कल्पना चावला को अपना रोल मॉडल माना एंड दे डिसाइडेड दैट नो दे हैव टू डू समथिंग. इट्स ओके इफ दे आर from a small town, it's okay if they do not have enough resources, लेकिन all you need is to be persistent. आप अगर लगे हुए हो कि नहीं ये तो मुझे करना ही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो literally आपको कोई नहीं रोक सकता. So Kalpana Chawla is a hero and she is a heroine, I should say. She is a heroine for everyone out there who believes that they can do something. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of a college in Chandigarh, Kalpana said, कल्पना जब ट्रैवल करी थी स्पेस शटल में थी, तो वहाँ से अपने जो फेलो स्टूडेंट्स थे, जो जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास आउट किया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, वहाँ से उन्होंने अपने कॉलेज के जो उनके जो मतलब जूनियर्स थे उनके लिए एक मैसेज भेजा था. द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस दैट्स एग्जिस्ट. मतलब अगर आप सपने देखते हो तो सपनों से लेके हकीकत तक में एक पाथ है. द पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम योर ड्रीम्स टू सक्सेस. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट. आपके पास वो साइट होना चाहिए, वो दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे आप उसको पा सको. द करेज टू गेट ऑन टू इट. मतलब पहले तो उसको ढूंढो कि तुम क्या चाहते हो एंड देन हैव द करेज टू गेट इट. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. There will surely be many who start off this journey to fulfill their dreams. और उन्होंने कहा wishing you a very all the best for your journey. और इस तरीके से उन्होंने एक अपनी छोटी सी लाइन से, 2-3 लाइन से उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया. There will surely be many to start off on this journey to fulfill their dreams. और अब ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है दैट यू कैन बी एन एस्ट्रोनॉट एंड यू कैन गो टू स्पेस, बिकॉज शी हैज़ डन दैट एंड वी नो दैट दिस इज पॉसिबल. सो उन्होंने ये ड्रीम बहुत सारे लोगों को दे दिया जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको स्पेस के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है. सो गाइज, येस, इफ यू वांट टू बी देयर यू कैन डू इट. द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज determination, persistence, and the courage that yes, I can do it. So on this note, we are done with our chapter reading, and I'm sure that you guys got motivated and you have the feeling that कुछ करके दिखाना है. So a big salute to Kalpana Chawla, and I'll see you in my next video with the NCERT solutions of this particular chapter. तब तक के लिए stay connected, stay tuned, take care, bye bye.